Hello students, you are most welcome on Digital Bats. This is new exercise of chapter number 3, that is class 9 chapter number 3, coordinate geometry, and exercise 3.2. See, in this video we are going to cover about exercise 3.2 and exercise 3.3, both the exercise we are going to cover. So go through each and every sum, each and every topic properly and go through it कि आपको समझ में आना चाहिए. If you found any difficulties you can ask me out, and related to the topics and the words you have to refer the first part of this chapter, that is introduction part and exercise 3.1. At least go through that video so that you can know what actually we are talking about. X axis क्या है, abscissa क्या है, what is ordinate, what is coordinate, how to represent them on number line, or how to represent particularly things. So हर एक चीज को आपको represent करना है, हर एक चीज को देखना है. So go through the introduction part first and then come again back to this video and go through it. This will help you to clear the concepts about your coordinate geometry, or we can say Cartesian system, clear, or we can say xy plane. जो भी चीजें हैं या टू डायमेंशनल वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, एब्सिसा कैसे फाइंड करना है, हाउ टू फाइंड आउट ऑर्डिनेट, how to find out coordinate, everything would be clear in first part so that we can continue with the exercise. So let's begin the exercise. कि exercise के अंदर किस तरह से questions हैं. Write the answer of each of the following question. What is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian system? Yani here you are asked what is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane. यानी नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन दोनों के नेम आपको फाइंड करने हैं. तो जैसे सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लियर, सी एज यू नो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस, क्लियर, एंड वर्टिकल लाइन हमारी होती है वाई एक्सिस. सो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस या फिर हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, एंड वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट. सो दिस आर द नेम्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन. व्हाट नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज x axis yani abscissa. Name of the y axis, that is vertical line, that is known as ordinate. Clear? So let us recall the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane is x axis known as abscissa and y axis known as ordinate respectively. Clear? See, this is abscissa and this is ordinate या फिर x axis and y axis. इस तरफ सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. Here all are, sorry, here all are positive numbers, here all are negative numbers. In y axis upside there are positive numbers and downside there are negative numbers. So that must be clear. Next question number 2. What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब देखो एक प्लेन को ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टोटली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. दिस पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट. इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट मींस दे आर इक्वल पार्ट्स एंड दे आर इन 90 डिग्री. ये 90 डिग्री में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो इट इज नोन एज the name of the each part of the plane formed by these two lines x axis and y axis is quadrant, is known as quadrant. वो चीज आपको ध्यान रखनी, it is known as quadrant. Clear? Now next if we talk about next question, clear, see यहाँ पे quadrants को आपको दिख जाएंगे. quadrants कौन कौन से हैं, किस तरह से हैं. so quadrants here. Third question, write the names of the point where these two line intersect. देखो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती मींस दिस पॉइंट. समझ में आ रहा है? दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. हमने पहले बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में. इफ यू आर नॉट गोन थ्रू यू कैन गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस चीज की. तो ओरिजिन जिसकी वैल्यू होती है 0 0. सो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट रेफर करोगे तो हर एक चीज पता चल जाएगा. हियर आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द आंसर. The points where these two lines intersect each other is called origin. So ये point जो है यहाँ पे intersect हो रहा है. So origin के coordinates होते हैं 0, 0. Origin coordinate is 0, 0. Then next है see figure and write the following. आपको फिगर देखना है और बाकी जो भी फॉलोइंग डिटेल्स है वो आपको फिल अप करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर देख लो आराम से. सी फिगर ये रहा. सी हियर आर द डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स डैश. मींस यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे. दिस इज वाई एक्सिस यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई डैश मींस नेगेटिव वाई एक्सिस. सो ये चीज याद रखनी है. अकॉर्डिंगली वी हैव बीन गिवन सम पॉइंट्स. कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं? सो सी हियर इट इज बी, C, D, E, G, H,
एल एम. Total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points are given. So you have to find out according to this कि कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स डिपेंड करता है. देखो क्वेश्चन में क्या पूछा उसके बेस पे हम लोग को तो दिख रहे हैं कि 8 पॉइंट्स है, बट अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसके बेस पे आपको बताना होगा. सो फर्स्ट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी. अब पॉइंट बी के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, इफ वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी, सो हाउ वी विल फाइंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट बी इज ओवर हियर. सो वी वांट कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट मींस वी वांट एक्स एंड वाई बोथ, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू यानी एब्सिसा चाहिए आपको, एंड यू आल्सो नीड ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए. सो पहले हम लोग एक्स की वैल्यू ढूंढते हैं, देन वी विल फाइंड वाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स की वैल्यू ढूंढने हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बोला था? परपेंडिकुलर लाइन. यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. सो लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दिस इज द पॉइंट बी. अब ये देखो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो एक्स एक्सिस इज -5, तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हो गया -5. देन y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन देखें हम लोग, हियर इट इज, सो इट इज 2, सो y एक्सिस हमारा 2. तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी क्या हो गया? सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x, y, दैट इज -5, 2. -5, 2 इज द कोऑर्डिनेट. चलो इसको हम लोग प्लेस कर दें. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी इज -5, 2, -5, 2. चलिए समझ में आ गया किस तरह से फाइंड करना है. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी. पहले सी पॉइंट लोकेट करो. सी पॉइंट इज हियर. कोऑर्डिनेट्स मींस वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. सो सपोज एक्स एक्सिस यानी को एब्सिसा हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है. एब्सिसा एक्स इक्वल्स टू एंड ऑर्डिनेट दैट इज y इक्वल्स टू. तो y की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है, वो पहले फाइंड करें. सो फॉर दैट we'll change, first of all let me change the color for you so that you can easily identify. See, वर्टिकल लाइन अगर पहले हम लोग को वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस के ऊपर, सो हियर इट इज 5, सो एक्स की वैल्यू होगी 5. एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर लाइन ऑन वाई एक्सिस दैट इज -5. वाई एक्सिस के ऊपर वर्टिकल लाइन दैट इज -5 हो गया. सो वाई हमारा होगा -5. क्लियर. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट्स यानी x, y, दैट इज c विल बी हैविंग 5, -5, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू -5. हमेशा हम लोग x पहले लिखते हैं, देन वी राइट y. सो ये चीज याद रखना है, x पहले लिखना है फिर उसके बाद y लिखना है. सो यू विल गेट द वैल्यू x, y इक्वल्स टू 5, -5. चलिए क्लियर, समझ में आया. सो coordinates of c that is 5, -5. coordinates of c is 5, -5. क्लियर. आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से फाइंड करना है. जस्ट यू नीड टू डू इज पहले पॉइंट को लोकेट करो कि कहाँ है, देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन x एक्सिस, देन यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन y एक्सिस. सो y एक्सिस और x एक्सिस की परपेंडिकुलर, अगर x एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको x की वैल्यू मिलेगी दैट इज 5. y एक्सिस के ऊपर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको y की वैल्यू मिलेगी दैट इज -5. और उसी के अगर x y की वैल्यू मिल जाती है आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं हर एक पॉइंट के. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c इज 5, -5. Then second question number 3, the point identified by the coordinates -3 and -5. देखो अब हमको क्या करना है, कौन सा पॉइंट है जो -3 और -5 को आइडेंटिफाई करता है. -3 इज वैल्यू ऑफ x और -5 इज वैल्यू ऑफ y. सो पहले -3 ये रहा और -5 यानी ये रहा. इन दोनों पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बनाओ, परपेंडिकुलर लाइन. चलो बनाई, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ई पे. सो पॉइंट ई इज द वैल्यू या इज द पॉइंट, पॉइंट ई इज आइडेंटिफाइड. ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे डायरेक्टली, पॉइंट ई इज आइडेंटिफाइड by the coordinates 3, -3, -5. ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन, खाली सिंपल चीज करना है. पहले -3 बोला है तो x एक्सिस होता है, तो -3 x एक्सिस पे ढूंढो. फिर -5 बोला दैट इज -5 इज ऑन y एक्सिस, तो -3 -5 -3 ऑन x एक्सिस, -5 ऑन y एक्सिस, एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. यहाँ पे तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो हमको पता चल गया कि e से इंटरसेक्ट दी. दिस फिगर इज गिवन इन योर नोटबुक ऑलरेडी. ये फिगर आपके अंदर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सो यू कैन गो विद. जस्ट आपको लिखना होगा द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5 इज e. इस तरह से आप लिख दो. क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3.
नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4. यानी हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू या एब्सिसा मैं कहूं, सी इट इज आल्सो सेड एज एब्सिसा आल्सो. x एक्सिस और एब्सिसा इज 2 एंड y एक्सिस और ऑर्डिनेट y एक्सिस और ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू -4. तो पहले x एक्सिस पे 2 ढूंढो, तो 2 ये रहा. y एक्सिस यानी x एक्सिस पे 2 ढूंढा, y एक्सिस पे -4 ढूंढो, तो y एक्सिस के ऊपर -4 ये रहा. दोनों से परपेंडिकुलर लाइन बनाओ. सो देखो, आप देखोगे तो इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट G पे. सो द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 is identified by the point G. So question आप लिखो, the point identified by the coordinates 2, -4 is G. समझ में आ गया. जस्ट क्या करना है, पहले फाइंड आउट 2 ऑन x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस. हमेशा x और y, x की वैल्यू पहले एंड y की वैल्यू बाद में. So x that is 2 and y that is -4. When we draw perpendicular line from both the points, perpendicular line वैसे तो ग्राफ के अंदर दिया हुआ है परपेंडिकुलर लाइन, नहीं हो तो भी आपको थोड़ा सा भी स्लैंटिंग नहीं, परपेंडिकुलर लाइन, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर लाइन. सो इट विल बी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट G. ये इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, पॉइंट G के ऊपर. सो पॉइंट G इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 2, -4 का जो कोऑर्डिनेट्स है वो पॉइंट G को आइडेंटिफाई कर रहा है. देन द एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. देखो पहले पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो, x एंड y दोनों फाइंड करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली हमको क्या बोला, एब्सिसा. अगर एब्सिसा बोला है ना तो आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए एटलीस्ट. सो D अगर x एक्सिस के ऊपर मैं प्लॉट कर रहा हूं डायरेक्टली, सो आई विल गेट 6. अगर y एक्सिस के ऊपर कर रहा हूं तो 2. सो कोऑर्डिनेट ऑफ D आर 6, 2. D का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 6, 2. दैट इज x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 2. यानी अगर हमको सिर्फ क्या पूछा है, एब्सिसा पूछा है. सो एब्सिसा क्या होता है, x एक्सिस या x की वैल्यू. सो एब्सिसा दैट इज x इक्वल्स टू 6. तो एब्सिसा क्या होगा, 6. सो ये चेक कर लेते हैं. द एब्सिसा ऑफ D मींस x कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 6. एब्सिसा का मतलब होता है x एक्सिस का कोऑर्डिनेट और x का कोऑर्डिनेट क्या है, 6. सो दिस इज द आंसर. चलिए, समझ में आ रहा है, क्लियर है. अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगे, यू कैन आस्क एनी टाइम. आप कभी भी क्वेश्चन पूछो, आपको क्वेश्चन के डाउट नहीं होने चाहिए, क्लियर कर लेना. क्लियर, यू शुड नॉट हैव एनी क्वेश्चंस. कीप इन माइंड, हर एक चीज का सॉल्यूशन लेके ही. सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर सॉल्यूशन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H. पॉइंट H पहले ढूंढो, ये रहा. इसके पहले देखो, x एक्सिस के ऊपर -5, y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया तो -3. सो एब्सिसा दैट इज x कोऑर्डिनेट हो जाता है आपका -5 एंड ऑर्डिनेट दैट इज y कोऑर्डिनेट हो जाता है -3. एंड व्हिच इज आस्क्ड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H. ऑर्डिनेट मतलब y पॉइंट. सो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H, the ordinate of H means y coordinate of H is -3. y coordinate of H क्या हो गया, -3 हो गया. So this is -3. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है. आई होप क्लियर है, एवरीथिंग क्लियर. व्हाट अबाउट दिस? ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट द पॉइंट L कहाँ है. भाई ढूंढो 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 ढूंढो, सब जगह ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा. क्लियर. लेकिन पॉइंट L ये रहा हमारा और इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं. देखो, कोई भी पॉइंट, ये चीज याद रखना, कोई भी पॉइंट अगर जैसे y एक्सिस के ऊपर है तो x हमेशा 0 होगा. अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो x हमेशा 0 होगा. और अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, सपोज यहाँ पे कहीं पे है, तो y एक्सिस 0 होगा. अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो रहा है तो y विल बी 0. अगर पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है तो x विल बी 0. अगर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, जैसे यहाँ पे ये मैंने पॉइंट सपोज ले लिया x, या नहीं x नहीं ले रहा, a ले रहा हूँ. पॉइंट A जो x एक्सिस के ऊपर है तो y विल बी 0. और अगर y एक्सिस के ऊपर है तो x विल बी 0. ये चीज याद रखनी, ठीक है. अब हमें क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L. यानी आपको x, y एब्सिसा भी चाहिए, क्लियर, एंड ऑर्डिनेट भी चाहिए, दोनों चाहिए. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू चाहिए. तो पहले एब्सिसा, जैसे कि एज आई सेड, और जैसे कि मैंने बताया, दैट कोऑर्डिनेट इफ द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस, तो एब्सिसा यानी x हमारा हो जाता है 0. तो एब्सिसा यानी x इक्वल्स टू 0 लिखो, ठीक है. और पॉइंट जो है 5 के ऊपर है, क्लियर, इट इज ऑन 5. सो हमारा ऑर्डिनेट यानी y जो होगा 5, क्लियर.
कोऑर्डिनेट यानी y एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू तो 5 होगी, सो y वुड बी 5. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, सो कोऑर्डिनेट ऑफ point L that is x comma y equals to 0 comma 5. so x comma 5 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 comma 5. क्लियर, बस उसको प्रॉपर वे में लिख दो आप. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L आर 0 comma 5. बस सिंपल, समझ में आ गया. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट आप फॉलो करोगे तो प्रॉपरली आपको समझ में भी आएगा और इजीली हो जाएगा. सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M, पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स, तो पहले पॉइंट M फाइंड करो भाई. M M M M M ये रहा भाई M, ये रहा. सी M पॉइंट जो है किसके ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर. तो एज आई सेड earlier that when the point is on x axis then it y coordinates या ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा. y कोऑर्डिनेट्स या ऑर्डिनेट 0 होगा. और x एक्सिस पे वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे वैल्यू -3. यू कैन सी हियर x एक्सिस पे वैल्यू -3 m की. सो एब्सिसा यानी x की वैल्यू हो गई -3 एंड ऑर्डिनेट दैट इज y की वैल्यू हो गई 0. सो हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ m is -3, 0. कोऑर्डिनेट ऑफ m is -3, 0. जस्ट उसको प्रॉपर्ली लिख दो. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m आर -3, 0. चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा. ये दिस वाज एक्सरसाइज क्लियर. दिस वाज द एक्सरसाइज 3.2. पूरा कंसेप्ट क्लियर किया. नाउ वी विल गो ऑन टू एक्सरसाइज 3.3. एक्सरसाइज 3.3 किस तरह से करना है उसको भी हम लोग देख लेंगे. एक्सरसाइज 3.3 चलिए, ठीक है. सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, exercise 3.3 of 9th standard, chapter number 3 on digital maths. Clear? First of all, in which quadrant on which axis do each of the point -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 and -3, -5 lie? Verify your answer by locating them on Cartesian plane. ठीक है, देखो इन्होंने क्या बोला है. पहले सबसे पहले ध्यान दो. सी अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट. जैसे एक्स एक्सिस में ले लेता हूँ अभी, जस्ट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. दिस इज क्वाड्रेंट 1, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट 4. टोटल 4 क्वाड्रेंट्स हैं. इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट लाई? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल -2, 4 यानी एक्स एक्सिस माइनस होगा. तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं अभी बता रहा हूँ. फिगर दिया हुआ है इट्स ओके, नहीं दिया हुआ है तो भी ओके. 3 सपोज 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5. आई एम ड्रॉइंग रफली, आपको ध्यान रखना है ग्राफ के अंदर अच्छे से बनाना है. ग्राफ के अंदर ही बनाओ. क्लियर? -5. सो नाउ फर्स्ट पॉइंट -2, 4. तो -2 यानी -2 यहाँ पे होगा और 4 मीन्स यहाँ पे. यहाँ से आप परपेंडिकुलर लाइन बनाओ इस तरह से और यहाँ पे इंटरसेक्ट करो. इस पॉइंट को नेम दे देता हूँ A, दैट इज -2, 4. तो कौन से क्वाड्रेंट पे आया? इन क्वाड्रेंट 2. और वैसे भी हमको याद रखना है क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4. क्वाड्रेंट 1 के अंदर दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 के अंदर x माइनस एंड y पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 3 के अंदर दोनों नेगेटिव एंड क्वाड्रेंट 4 के अंदर x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव. सो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव है मींस क्वाड्रेंट 2 में होगा. ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली लिख दो. फिर 3, -1 है. 3, -1 मींस क्वाड्रेंट 4. यहाँ पे आएगा 3, -1 क्वाड्रेंट 4. यहाँ पे आएगा -2, 4. फिर -1, 0. -1, 0 है. 0 इज नॉट लाइंग इन एनी क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में नहीं है. -1, 0 विल लाई ऑन x एक्सिस. वो x एक्सिस पे होगा. तो यहाँ पे -1, 0 मींस यहाँ पे. सो हियर लेट इट बी पॉइंट. कोई भी पॉइंट हम लोग नेम दे देते तो यहाँ पे हो जाएगा. सपोज C ले रहा हूँ बिकॉज B वुड बी, C हमारा हो गया. C का आ जाएगा -1, 0. ठीक है, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन बताएंगे तो इट वुड बी ऑन x एक्सिस. ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, x एक्सिस पे होगा. ये चीज याद रखना है. देन 1, 2 दोनों के दोनों पॉजिटिव है. 1, 2 देन बोथ आर ऑन क्वाड्रेंट 1. -3, -5 दोनों के दोनों नेगेटिव है. -3, -5 मींस बोथ लाई ऑन थर्ड क्वाड्रेंट. सो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करूं, देखो यहाँ पे क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. सो प्रॉपर्ली देखो हर एक डायग्राम को, उसके बेस पे भी रिफर कर. आपको क्या करना है, -2 दिया हुआ है यहाँ पे, 4 दिया हुआ है यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट, हाँ पॉइंट A सपोज कर लो. आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे होगा वहां पे आप लिख दो 2, -2, 4. सिमिलरली
3 कॉमा माइनस वन, तो पहले 3 ढूंढो, फिर माइनस वन ढूंढो, फिर दोनों का परपेंडिकुलर देखो 3, यहाँ पे याद रखना एक्स कॉमा वाई, 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 ये हमेशा x पहले रहेगा y बाद में रहेगा, ये तो हमेशा आपको दिमाग में रखना ही है. So from -1 and 3 you are drawing perpendicular line, तो both will intersect here. So I am writing that name B, that is comma 3 comma -1. फिर आपको देखना है -1 comma 0. So -1 means x axis -1 और comma 0 मतलब y, अगर x axis पे कोई भी पॉइंट है, as I said, if a point is on x axis then it would be always 0, y जो है हमेशा 0 होगा. So x axis -1, तो यहीं पे पॉइंट दे दो C, that is -1 comma 0. 1 comma 2, x axis 1 2, so इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नेम दे दिया D, that is 1 comma 2. then -3 comma -5, so -3 -5 डॉटेड लाइन आप ड्रॉप करो नीचे, here it would be -3 comma -5, that would be E point. चलो 5 के 5 पॉइंट्स हो गए और हमको पता भी चल गया कौन सा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है. सो -2, 4 सेकंड क्वाड्रेंट, 3, -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, -1, 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस, 1, 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड -3, -5 दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट. इस तरह इस चीज को याद रखना है, समझना है, कहीं भी कंफ्यूजन होनी चाहिए नहीं. चलिए आई होप सब कुछ क्लियर है किस तरह से बना चाहिए. फिर भी कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो आपको पता चलेगा. क्लियर. नाउ plot the points x, y given in the following table on the plane choosing suitable unit of distance. आपकी मर्जी से हिसाब से डिस्टेंस ले सकते हो. जैसे कि सपोज द पॉइंट्स हमेशा x और y में प्लॉट किए जाते हैं, तो हम लोग पहले सारे के सारे पॉइंट्स ले लें, नेम दे दें a -2, 8 फर्स्ट वाला, x एक्सिस -8 y 8, फिर b -1, 7 -1, 7 c 0, -1.25, d 1, 3, so 1, 3, e that is 3, e जो है 3, -1, तो e that is 3, -1. आपको क्या करना है, पहले x एक्सिस इस तरह से बनाओ, y एक्सिस बनाओ, जितनी भी लेंथ चाहिए, डिपेंड करता है, ये यहाँ पे प्रॉपर नहीं है तो लिमिट्स. सी फर्स्ट पॉइंट -2, 8, सेकंड पॉइंट -1, 7, 0, -1.25, 3, 1, ये सारे के सारे मींस टोटल 5 पॉइंट्स हैं. पांचों पॉइंट्स को हमको प्लॉट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द ग्राफ मार्क x एक्सिस एंड y एक्सिस, मार्क द मीटिंग पॉइंट एज O. पहले ग्राफ बनाओ, ठीक है, जस्ट अच्छा सा बनाना, क्योंकि यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, बट अच्छे से आप बनाना, मैं रफली बता रहा हूँ आपको. यू टू ड्रॉ प्रॉपर्ली x एक्सिस y एक्सिस. सो टेकिंग 1 यूनिट इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, मतलब स्केल आपको रखनी है, स्केल x एक्सिस एंड y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, दैट इज 1 यूनिट इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर, ये सब में सेम रखना है, ठीक है. तो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 हम लोग ऐसे ले रहे हैं. यहाँ पे -0.5, -1, -1.5, -2, -2.5, -3. Here also 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. देखो 7 तक जाना है, मेरे पास लिमिटेशंस है तो मैंने 3.5 तक बनाया. यू हैव टू गो अप टू 8 and 7. क्लियर. सो सिमिलरली नेगेटिव -0.5, -0.1, -1.5, -2. क्लियर. यहाँ तक हम लोग रखते हैं, खाली ऊपर की लाइन प्रॉपर बनानी थी तो हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है. 7 to 8 तक जाना है. नाउ -2 and 8, सपोज -2 मींस x की वैल्यू हुई, x की वैल्यू -2 हुई, और 8 यानी y की वैल्यू, तो -2 हमारा ये रहा, 8 सपोज यहाँ पे कहीं पे है पॉजिटिव, सो इसको डॉटेड लाइन बनाओ और इसको ग्राफ पे लिख दो. दैट इज फर्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा -2, 8. इस तरह से हम करेंगे सारी वैल्यूज. देखो ये ग्राफ ये रहा, मैंने आपको बनाया. क्लियर. कैसे करना है प्लॉटिंग में बता देता हूँ. सी ये इसी के ऊपर -2 आप ढूंढो पहले, ये तो मैंने 1, 1 का लिया है, 0.5 का लेना है रेशियोज, ठीक है. ये सारे प्लॉट्स, ये रेशियोज. सी -2, 8, तो -2 आपका ये रहा, ठीक है, और 8 आपका ये रहा. सो जस्ट यहाँ से डॉटेड लाइन बनाओ. वैसे ग्राफ के अंदर तो डायरेक्टली लाइन होती है तो आपको डॉटेड लाइन बनानी नहीं पड़ेगी, बट डॉटेड लाइन से बनाते हो तो आपको प्रॉपर डायग्राम प्रॉपर वे में मिलता है. सो यू ड्रॉ जस्ट डॉटेड लाइन और राइट फर्स्ट पॉइंट -2, 8, सेकेंड पॉइंट -1, 7, तो -1 ये रहा, और -7
ये रहा, तो यहाँ से डॉटेड लाइन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट बनाओ, डॉटेड लाइन, क्लियर, जस्ट ड्रॉ डॉटेड लाइन बोथ द साइड। सो यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनाई। सो -1,7 दैट इज सेकंड पॉइंट, मैंने सेकंड पॉइंट नेम दे दिया -1,7, क्लियर, -1,7। नाउ थर्ड पॉइंट दैट इज 0, -1.25, तो 0 ये रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस 0 मतलब ये रहा, वाई -1.25, तो y यहाँ पे आ जाएगा बीच में, क्योंकि -1 और -1.5 के सेंटर में, दैट इज ईयर, इसको नेम देते हैं 0.3, दैट इज 0, -1.25। देन फोर्थ पॉइंट 1,3, तो 1 ये रहा, 3 आपका ये रहा, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। यहाँ से डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, एक्सटेंड करो। सो हियर फोर्थ पॉइंट दैट इज 1,3, clear. Then fifth point 3, -1, so 3 is here, -1 is here, dotted line बनाओ आप perpendicular, इसको कनेक्ट कर दो। so here fifth point that is 3, -1। अब इसी चीज में अगर आपको एब्सिसा पूछे, ऑर्डिनेट पूछे, यू कैन, सो हियर फर्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, सी -1,8, सो एब्सिसा -2, ऑर्डिनेट 8। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो एब्सिसा -1, ordinate 7। third point, this is the third point that is here, this is the third point, ये third point है। अगर इसकी बात करें तो abscissa that is equals to 0, ordinate that is equals to -1.25। then fourth point that is 1,3, so abscissa equals to 1, ordinate equals to 3। last point, fifth point, that is abscissa equals to 3 and ordinate equals to -1। सो कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकते हैं। अब आपको आई होप कैसे ग्राफ बनाना, ग्राफ के अंदर प्लॉटिंग कैसे करना, किस तरह से फाइंड करना पता चल गया होगा। फिर भी प्रैक्टिस, प्लीज डू अ प्रैक्टिस एंड राइट ईच एंड एवरी सम एंड देन टू। अगर फिर भी आपको कोई ना कोई डाउट लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कभी भी क्वेश्चन पूछो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यू विल गेट द सॉल्यूशन। जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। एंड कुछ भी क्वेश्चंस हो, क्वेरी हो, यू कैन आस्क मी आउट। सो थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, शेयरिंग इज केयरिंग। और कहीं पे भी डाउट है आप लोग कमेंट कीजिए। एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, आपको समझ में आ रहा है, देन टू ऑल्सो राइट दैट आई हैव अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली, सो दैट मुझे पता चले कि लाइक दिस आई शुड मेक अ वीडियो और नॉट, इस तरह से समझाते रहना चाहिए या नहीं समझाना चाहिए। सो बेस्ड ऑन योर रिव्यूज आई विल मेक द वीडियोस, clear. So thank you very much. Share with your friends so that each and every person can learn, each and every student can learn, because our motto is ask the doubt and get the solution। यानी आपका कोई भी डाउट है, हम लोग आपका सॉल्यूशन देने के लिए रेडी है। So thank you very